सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिंदी और बांग्ला दोनों में ही बोलना पसंद करूँगा उचित समय, क्योंकि ये जो अशोक वर्मा जी, ये बारात घाटी के ही नहीं, वे असम में परिचित ऐसे एक व्यक्तित्व हैं, साहित्य साधक, जिनके बारे में कुछ कहने के लिए सिर्फ हिंदी बोलने से ही नहीं होगा और सिर्फ बांग्ला बोलने से नहीं होगा। तो ऐसे ही स्थिति है। मंच में हमारे साथ उपस्थित मुनिजन सब लोग, गोस्वामी जी, मुनिया जी, मीता, सिंह जी, आदिमा, सभी को मैं स्वागत करता हूँ। बाकी जो लोग यहाँ हैं सभी को स्वागत। बाबुल कामरे जी अब तक तो बता ही चुके हैं कि हम यहाँ एकत्रित क्यों हुए हैं। দেখুন, অশোক বর্মা আমার ছোটোবেলা থেকে পরিচিত। আমার শৈশবে যে কয়েকজন পড়ালেখা করা মানুষকে আমি দেখেছিলাম বাগানে, তার মধ্যে অশোক বর্মা একজন। আমরা রানুদা ডাকতাম, তার নাম রানু। তিনি পড়াশোনা কিন্তু বিজ্ঞান, সায়েন্স, হ্যাঁ। আর ওনার দাদা যে যমুনা প্রসাদ স্বর্ণকার, তিনিও এই বিরাট অঞ্চলের পরিচিত এক শিক্ষক নাম, নমস্য ব্যক্তি, সম্মানিত ব্যক্তি, সবাই ভালোবাসা, সবার ভালোবাসার সম্ভ্রম করা, সম্মান করা ব্যক্তিত্ব। ওরা বদ্রীবস্তিতে ছিলেন, পরে কাশীপুর বাগানে চলে আসেন। উনি নার্সিং স্কুলে আসার আগে কাশীপুর স্কুলেও কাজ করেছেন, আমার মনে আছে। আমাদের বাড়িতে সবসময় আসতেন। আর নার্সিং স্কুলে উনি এই বিভিন্ন বিষয়ে পড়ানোর বিস্তারটা ওনার করেন। স্কুলে সাবজেক্ট স্পেসিফিক টিচার থাকে ঠিকই, কিন্তু তিনি সেখানে কালক্রমে দেখা গেল বাংলা পড়ান বেশি। লেখালেখি প্রায় ওই রকম সময়ে শুরু। ইদানিংকালে বয়স হয়েছে, রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন, কিন্তু উনি যে এই অনুবাদগুলি করেন শুধু এই বাংলা থেকে হিন্দিরা, ইদানিংকালে এই সিরিজটা শুরু করেছেন 19শে মে নিয়ে লিখিত। ভাষা শহীদের স্মৃতি বিজড়িত 19শে মে, ওইটা সম্পর্কে যত কবিতা যারা যারা লিখেছেন, প্রমিনেন্ট যারা, এই সমস্ত কবিতার হিন্দি অনুবাদ তিনি করছেন, আবার আবৃত্তিও করছেন, অডিও আপলোড করছেন। আমি প্রায় প্রতি রাত্রেই একটা পাই। ऐसे एक व्यक्ति के बारे में आज बोलना है जो सचमुच हम लोगों के बराक वैली तथा इसके बाहर भी एक साधना में मैं आज का यहाँ जो उद्घाटन समारोह हुआ उसमें सभापति डॉक्टर संतोष चक्रवर्ती को मैं अपना आंतरिक श्रद्धा विनम्र भावभक्ति जमाते हुए यहाँ मंच पर बैठे हैं मीता दास जी कुलकर्णी, अलीमा मजुमदार, मदन सिंघल जी और रवि लुनिया जी, सभी मेरा घनिष्ठ हैं। सामने जो बैठे हैं किसका नाम बाबू का है, दिलीप हैं, हम लोग का चक्रवर्ती है, सभी अपना ही, और सभी के साथ मेरा कुछ न कुछ संपर्क। मैं और अशोक वर्मा उम्र में शायद 1-2 साल के छोटे होंगे वो मुझसे, मुझे ही प्रतीत होता। मैं कई बार पूछा जो बाहर बाढ़ डेटवा बोला न हो, बोले बाढ़ डेट भैया क्या करवा, भैया बोले नहीं हुए बहुत। तो उनके साथ मेरा
बहुत ही लगाव है। मैं एक चीज़ कहूँ, मैं जब इसी कॉलेज में 1962 में मैट्रिक पास करके इसी कॉलेज में गया था, तो मैं भी यही साइंस लिया था। जो सब्जेक्ट वो पढ़े हैं मैं भी उसी सब्जेक्ट में पढ़ा हूँ। तो 62-3 का बात है, उस वक्त प्री यूनिवर्सिटी है। हरिपद भट्टाचार्य जी जो बहुत ही एक ज्ञानी और बहुत बड़ा शिक्षाविद थे और इंग्लिश का बहुत अच्छा जानकार थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका माने ग्रेजुएशन इन इंग्लिश वो किए थे। সবাইকে নমস্কার জানাচ্ছি। এখানে যারা আছেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠদেরকে প্রণাম জানাচ্ছি, আর যারা আমার সময় বসে আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আজকে যে এই অনুষ্ঠানে 3টা বই উন্মোচন হলো, এই মাত্র 3টা বইয়ের মোড়ক উন্মোচিত হলো। আর যার লেখা বই যিনি করলেন বালার প্রকাশনী থেকে, যিনি উদ্যোগ নিয়েছেন অশোক বর্মা বালার প্রকাশনী থেকে, তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক নাম। একটু আগেই বলেছেন, আমাদের সভাপতি মহোদয় বলেছেন, সঞ্চালক বলেছেন যে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় একজন নাম। তার সমপর্যায়ের যে সাহিত্য সাধনা সেটা হয়তো একটা কিংবদন্তি হয়ে থাকে। তিনি শুধু কিংবদন্তির পর্যায়ে যে গেছেন সেই কথা না, তিনি একটা অনুপ্রেরণার নাম। আমি অনেক সময়ই তার কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পাই। যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন ভাবি যে অশোক বর্মা তিনি আমার বাবার বয়সী পুরো, যদিও আমার বাবা নেই, কিন্তু তিনি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। তো আমি কেন পারবো না, আমি কেন ক্লান্ত হই, উনি তো ক্লান্ত হচ্ছেন। তো সেটাও একটা বিরাট অনুপ্রেরণা। কন্টিনিউ কাজ করে যাচ্ছেন, বই করে যাচ্ছেন, মনে হয় 30 বছর হবে, 30 বছরের কম হবে না ওনার প্রকাশনা চালিয়েই যাচ্ছেন, একের পর এক বই করছেন। আর শুধু যে খ্যাতনামা ব্যক্তিত্বের করছেন সেটা না, তিনি খ্যাত অখ্যাত কম বয়সী ম্যাচিওর যারা একদম অনেক সম্মানীয়, অনেক আগে গেছেন, এদেরও করছেন, আর নিজের বইও করছেন। আর একদম কম বয়সী যারা বা খ্যাতির আলোক প্রাপ্ত হননি তাদের বইও উনি করে যাচ্ছেন। अशोक वर्मा जी का अभी जो नाम आया है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए, मैं 55 साल से कवि हूँ। 55 साल पहले मुझे बाल कवि का तगमा मिला, लेकिन मैं ऐसी जगह आ गया सिलसिले में कि साहित्य तो मैं लिखता था, लेकिन कौन तो उसकी समीक्षा करे, कौन उसकी बुराई करे, कोई उसकी प्रशंसा करे, मैं किसे दिखाऊं। खैर, दत्तात्रेय जी का नाम लिया तो यह बहुत लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी। तो 1996-97 में मैं अशोक वर्मा जी से मिला। तो अशोक वर्मा जी बोले कि भले ही आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानता हूँ। तो बोलिए क्या करना है। मैं एक कवि सम्मेलन कम से कम करें, यहाँ कवि सम्मेलन नहीं होता। तो उन्होंने एक स्वामी जी थे, उनके साथ बातचीत किया। तो 1997 में जिला परिषद में नर्सिंग स्कूल में हम लोग बराबर प्रिंट करते थे साप्ताहिक। तो उसमें दिलीप जी तो हमारे अनुमान थे कि जो जो प्रबंध करना होता ये करते थे। করবো আমরা, তবে ওনাকে না জানিয়ে করলে কিন্তু উনি এইগুলো করবেন। জানিয়ে করলে উনি কোনো না কোনো কারণে সেটা অস্বীকার করবেন। কাজেই সেটা ওনাকে না জানিয়ে করাটা আমাদের পক্ষে শ্রেয়। আর বললেন উনি বিপণনের কথা, বিপণনের ব্যাপারটা আমরা যদি সবাই আজকেই ওনার যারা আছি এখানে ও বলছিলেন যে এটা করতে অনেক খরচ হয়ে যায়। উনি একজন অন্যরকম মানুষ, আমরা সাধারণ মানুষের মতো না। উনি যখন আমার
পাই না। তারপরে ওনার সঙ্গে যখন ফোনে আলাপ হয় বলেন আর ছেড়ে দাও হবে। এই যে টাকাগুলোর ঘাটতি, এই घाटती টাকাগুলো কোথা থেকে আসে? अशोक वर्मा जी के बारे में जितना भी कुछ कहा जाए कम है। साहित्य के लिए वो एक ऐसा नाम है बराक वैली में कि उसका कोई तुलना नहीं है, क्योंकि वो बांग्ला, हिंदी, मणिपुरी, असमिया, डिमासा, पता नहीं कितनी भाषाओं में उन्होंने जो है अनुवाद किया है, पुस्तक निकाला है, बहुत सारा आप लोगों ने सुना है। तो और सब भाषा में तो लोग हैं, लेकिन हिंदी के लिए केवल और केवल एक ही है माननीय श्री अशोक वर्मा, जो बालार प्रकाशन के माध्यम से सतत हिंदी पुस्तकों का प्रकाशन कर रहे हैं, हिंदी के साहित्यकारों को स्थान दे रहे हैं। केवल स्थान नहीं देते हैं, वो सृजन भी करते हैं, लोगों को प्रेरित करना, उत्साहित करना, बोलना, फोन करना, लेख देने के लिए, कविता देने के लिए, एकदम जितना उनका आग्रह है उतना समाज में दम नहीं है। उस प्रकार से लोग निकल के नहीं आते जितना वो चाहते हैं। वो जितना चाहते हैं अगर उनके साथ अगर कदम मिला के चल सकते हैं हम लोग, तो बहुत बड़े साहित्य सृजन हो सकते थे। लेकिन वो एक तपस्वी की तरह, जैसे संतोषदा ने बताया है कि एक तपस्वी की तरह से निरंतर साधना में लीन है और बिना किसी विवाद के करे ही जा रहे हैं। विरह के दुख में उपजा था दोनों के प्रणय कुसुम, सब दमन वीर वो भारत तपोवन में हुआ था लालित, हरियाली लहलहाई थी धरती पर शरद और हेमंत। इस देश की सभ्यता मंत्र पुत्र हो मानव का है देन, त्याग और क्षमा के बूते लोग छूते थे ऊंचाई का आसमान। ये भूमि है राम की, है नचिकेता और जनक की भी। तो कहीं भी कोई नया किताब मिल जाए तो पहले ये जो सर्वे देख लेना। अब तक जो मैंने इस किताब में देखा आपसे बोलूँगा, দেখুন এটা একটা অভিনব সংকলন। প্রথম নম্বর কথা, আমার ধারণা যতজনের কবিতা এখানে অনুবাদ করা হয়েছে তারা সবাই এটা জানেন না যে তাদের কবিতা এখানে, पता नहीं है क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो जीवित नहीं है, जी, कुछ है जीवित है, प्रवीण से लेके नवीन तक सभी का किया उनका सिलेक्शन मैंने पूरा देख लिया इतने समय में। এত সময় আমি পুরোটা সার্ভে করে নিয়েছি। এমন সুন্দরভাবে তিনি সাজিয়েছেন, যেমন তিনি প্রথম শ্রীভূমি করিমগঞ্জ লিখেছেন, কিন্তু বদরপুরের কবি, তারপরে হাইলাকান্দির কবি, हैलाकंदी शिलचर, তারপর শিলচর। मिश्रा जी विश्व पितामह हैं इस अंचल की हिंदी के अगवानी के बारे में। तो गांडीवधारी अर्जुन है हमारे अशोक वर्मा जी, तालियां होनी चाहिए उनके लिए। निरलस साधना में, सतत साधना में व्यस्त हैं। वो बेंगलोर रहते हैं अपने बेटे के पास, लेकिन वो लिखते रहते हैं। करीबन 150 से ज़्यादा किताबें उन्होंने बालार प्रकाशन के माध्यम से प्रकाशित की है। पसंद एक हिंदी पत्रिका जो पहले उन्होंने शुरू किया था 1969-71 में, उसके बाद बालार्क 1971 में, और अभी तक बालार्क नियमित प्रकाशित हो रहा है, बीच बीच में बंद होने पर भी, लेकिन नियमित प्रकाशित हो रहा है।